एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਮਹਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਨੇਹਲਤਾ, ਵੀਨਾ, ਰੇਨੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੇਠੀ, ਅਰੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਕਿਰਨ ਮਹਿਤਾ, राकेश मेहता, अनीता मेहता, गौतम मेहता, जागृति मेहता, सिद्धार्थ मेहता, अदिति मेहता, मधुर सेतिया, राहुल अंबा, सोनिया अंबा, तजिंदर सेठी, सुहाना सेठी, ज्योतिका सेठी, कुणाल चोपड़ा, कबीर मेहता, प्राची मेहता, कायरा चोपड़ा, जायना चोपड़ा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਦਿਰ, ਜੇਲ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਟਹਿਲਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਦਿਆਵੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1934 ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1948 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨਾਥ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਨੇਹਲਤਾ, ਵੀਨਾ, ਰੇਨੂ, ਅਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨੇਹਲਤਾ ਅਤੇ ਰੇਨੂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉੱਨਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਰਮ ਭਗਤ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਬੀਰ ਮਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਮਹਿਤਾ, ਕਾਇਰਾ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਜਾਇਨਾ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। मेहता परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा दुख, परिवार को जिसने संभाल के रखा, परिवार की हर विपत्ति पर परिवार को एक साथ रखा, परिवार को समझाया, परिवार को उस विपत्ति से किस तरह बाहर निकलना है, उस विपत्ति का किस तरह सामना करना है और सबसे पहले उस विपत्ति से खुद सामना करना एक मां से ज्यादा और कोई भी नहीं कर सकता। आज मेहता परिवार का वही स्तंभ जो हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार के दुख को सबसे पहले अपने ऊपर लेने वाला जीव था, आज संसार को अलविदा कहकर ठाकुर जी के चरणों में चला।
पूरे परिवार को इकट्ठा रखा, पूरे परिवार की वृद्धि। एक यदि परिवार खुशहाल रहता है, संपन्न रहता है या सही मार्ग पर चलता है, धर्म कर्म करता है, समाज में यदि प्रतिष्ठा बनाता है, ये सभी गुण मां से प्राप्त हो। जिस मां ने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, समाज में रहना सिखाया, आज भगवान को प्रिय हो। लेकिन ये परिवार की सेवा है। परिवार ने यदि सेवा करी ना, तो 90 साल की आयु यदि बिताई माता जी ने, 90 साल बहुत बड़ी आयु होती, कहना सरल है, 90 साल। और 90 साल कोई ऐसे ही नहीं जी जाता। जिस तरह का माहौल आप देखते ना, गरुड़ पुराण में भी लिखा है कैसी व्यवस्था हो जाती है वृद्धावस्था, किसे कहते हैं? बुढ़ापा। गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में लिखा है श्वान के समान। श्वान किसे कहते? कुत्ते को। घर के मालिक की जिस समय इच्छा उस समय भोजन दिया, जिस समय नहीं इच्छा जितना मर्जी बोलते जाइए नहीं दिया, उसे कहते हैं श्वान। अगर 90 साल माता जी ने अपने जीवन के इस परिवार को दिए ना, तो इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इस परिवार के बच्चों का, इस परिवार की बहुओं का, इस परिवार के बेटों का, पोतों का बड़ा सहयोग है। जो इतनी लंबी आयु, और ज्यादा सहयोग उनका है जो दवाई की देखरेख करते थे। क्योंकि जितना मर्जी आप सैर कर लो, जितना मर्जी आप परहेज कर लो, लेकिन वृद्ध अवस्था में रोग आकर घेर लेते। और कलयुग में क्या देखते? बच्चे दवाई भी नहीं ले आके देते। अगर परिवार ने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, सही समय पर दवाई दी, सही समय पर भोजन कराया, तो आज माता जी 90 साल के होकर गए। नहीं तो 60 साल तो ऊपर जाना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कुछ अपने कर्म भी होते, कुछ संस्कार भी होते। गरुड़ पुराण में लिखा है जैसा बच्चों को सिखाओगे। अब माता जी ने बच्चों को धर्म कर्म सिखाया तो बच्चों ने सेवा करी, और बहू भी बिल्कुल बहुत अच्छी, कहने को बहू लेकिन बेटियों से ज्यादा देखरेख करी, तब जाकर इतनी आयु मिलती। सेवक कहलाना, सेवा करना बड़ी दूर की बात है। मंदिरों में भी प्रधान बन जाते हैं, प्रधानगी की लड़ाई रहती है, लेकिन सेवादार बनना बड़ा कठिन है। घर में बुजुर्गों की सेवा होती नहीं। और इस परिवार ने, मेहता परिवार ने, एक जो है ना संसार के लिए एक मिसाल है। कई लोग सोचते होंगे कि बुजुर्गों की सेवा से क्या मिलता है। आज नहीं कल जरूर मिलेगा, अवश्य मिलता है, अवश्य मिलता है। लेकिन कलयुग में थोड़ा ना अच्छाई का फल धीरे धीरे मिलता है।
और मनुष्य को तो तुरंत चाहिए अभी, इसलिए बुराई की ओर जल्दी चला जाता है। तो परिवार ने बहुत देखरेख की, बहुत सेवा करी। जो 90 साल आयु और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के पूरा परिवार ही ब्रह्म कुमारी आश्रम से, खुद भी 55 साल आयु जो है जीवन की। कोई 5 साल भी कितने नौकरी करता ना तो कहता मेरी यही जी फैक्ट्री है, दुकान मेरी। 55 साल जीवन के ब्रह्म कुमारी आश्रम के साथ, शायद उसी नाम संकीर्तन, उसी भजन का ये फल है जो 90 साल आयु प्राप्त हुई। अधिक समय नहीं लूंगा। हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी आश्रम से लक्ष्मी बहन जी यहां पहुंची हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि मेहता परिवार की इस दुख की घड़ी में शब्दों के द्वारा, कथा संकीर्तन के द्वारा हमारी माता जी को श्रद्धांजलि भी दें और परिवार को इतने बड़े दुख को सहन करने की शक्ति भी प्राप्त हो। अपने शब्दों के द्वारा ऐसा अमृत रूपी ज्ञान दें जिससे इनके मन को थोड़ा सा धैर्य रहे, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति परमात्मा इन्हें प्रदान करे। तो अब मैं निवेदन करूंगा ब्रह्म कुमारी आश्रम से लक्ष्मी बहन जी अपना कीमती समय निकालकर मेहता परिवार की इस दुख की घड़ी में यहाँ पहुंची। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज हम जिस महान आत्मा के शोक सभा में एकत्रित हुए हैं, वो एक ऐसी आत्मा थी जो शुरू से लेकर अब तक सदा ही परमात्मा की याद में मगन रहने वाली। और हमने देखा कि उन्होंने अपने घर और आध्यात्मिकता को कैसे बैलेंस रख के चलाया। घर गृहस्थी को भी बहुत अच्छी तरह संभाला और आध्यात्मिक मार्ग में भी उन्होंने बहुत सेवाएं की। शायद सभी जानते भी नहीं होंगे कि उनका जो त्याग, उनकी तपस्या, उनकी जो सेवा भावना हम कभी भी भूल नहीं सकते। एक घर को अच्छी तरह जिम्मेवारियों को निभाते हुए और आध्यात्मिकता को भी अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करना और घर गृहस्थ में रह के कमल फूल की तरह जीवन बनाना, ये बहुत हम सब के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है। माता जी हमेशा ही जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते थे, बहुत उमंग उत्साह से आना, सेवा भाव से आना, हमेशा पूछना कि क्या सेवा करनी है, कोई काम तो नहीं है। इतने मतलब कि अपने घर की तरह सेंटर को भी समझते थे और पूरा ही धीरे धीरे परिवार को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा। सभी सहयोगी रहे, बहुत अच्छी तरह उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया और बच्चों में भी वो संस्कार करे। तो हम सबको दुख तो है माता जी के जाने का, सभी को ही है, लेकिन कहते हैं कि ये सृष्टि क्या है, एक रंगमंच है और माता जी ने भी बहुत सुंदर पाठ बजाया और हम सब भी अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। कोई कैसा पाठ बजा रहा है, कोई कैसा पाठ बजा रहा है। जो जैसा पाठ बजाता है वैसा ही उसका अगला जीवन होता है, ये जीवन भी होता है। हम देखते हैं कि आदिकाल से ही इस सृष्टि रंगमंच पर दो बातें चली आ रही है। सुख है तो दुख भी है, लाभ है, हानि है, दिन है, रात है, निंदा है, स्तुति है,
और जन्म और मृत्यु, ये सब हम जानते हैं और इसको अच्छी तरह समझते हैं और स्वीकार भी करते हैं। लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो हमारा मन उसको गवाही नहीं देता है, सपोर्ट नहीं करता है। हजार सवाल हमारे मन में आते हैं कि ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कई बार तो हम ऐसे भी होते हैं कि किसी ने हमें समाचार दे दिया फलाने व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, तो हम एकदम कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो शायद बच जाते। लेकिन परमात्मा की ये सृष्टि है, ये बहुत सुंदर रचना है। परमात्मा ने हर चीज के लिए एक नियम बनाया है। तो कई बार हम परमात्मा के बनाए हुए नियमों पर भी हम संदेह करने लग जाते हैं। सोचो, एक सृष्टि है, दिन और रात का चक्कर है, अगर ये बैलेंस खराब हो जाए, सारा दिन ही दिन रहने लगे, कभी रात ही रात रहने लगे, तो कैसा सारा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाए। तो हर चीज परमात्मा ने एक्यूरेट बनाया है। अगर हमारा जन्म हुआ है, हम सबकी मृत्यु भी निश्चित है। और कई बार हम बहुत बार पढ़ते हैं ये कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, पानी बहा नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जब मृत्यु की बात आती है तो हम उसके परछाई से भागते हैं, बहुत डरते हैं, कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए। अपना नहीं तो अपनों का हमें डर होता है कि हमारे परिवार को ना कुछ हो जाए। और एक तरफ हम ये कहते कि आत्मा तो कभी मरती नहीं। वास्तव में ये मृत्यु क्या है? मृत्यु को हर एक महान आत्माओं ने, पुण्य आत्माओं ने अलग अलग उपाधि दी। देखा जाए तो मृत्यु क्या है? ड्रेस और एड्रेस चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ जो ड्रेस पहनते थे, ये शरीर क्या है? आत्मा की ये ड्रेस है। और यहाँ से हम ये ड्रेस चेंज करके हम दूसरे ड्रेस पहन लेते हैं, माना दूसरा शरीर धारण करते हैं। और यहाँ का एड्रेस खत्म होके वहाँ का एड्रेस हमारे साथ जुड़ जाता है। इसी को मृत्यु कहा है। और मृत्यु क्या है? एक नवीनता है। जब हम यहाँ से शरीर छोड़ते हैं तो वहाँ हमारे को नया शरीर मिलता है, नया परिवार मिलता है, नए संबंधी मिलते हैं, सब कुछ नया हो जाता है। तो वैसे तो कोई नई चीज हम लेते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमने नए वस्त्र पहना है। तो हम सब आत्माओं को भी, कोई आत्मा जाती है तो हमने उस आत्मा को खुशी खुशी से विदा करना है, क्योंकि हम यहाँ से विदाई कर रहे हैं। और कई जगह वो जहाँ जन्म लेना है वहाँ बधाई है, क्योंकि वहाँ बच्चा बन के जाना है। सोचो, जैसे हमारे घर में भी जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो हम पहले से ही बहुत तैयारियां करते, खुशी होती है ना। तो वहाँ वो खुशी का माहौल है और यहाँ गम का माहौल होता है, क्योंकि वो आत्मा हमसे छुट्टी लेके गई है। तो हमें क्या करना है? हमें भी उस आत्मा को बहुत प्यार से, श्रद्धा से, शांति से विदा करना है, ताकि वहां जाए, जिस भी स्थान पर जाए, जिस भी घर में जाए, वहां बहुत अच्छे से रहे। जो जाने वाली आत्मा होती है वो हमसे कुछ नहीं चाहती है, वो हमेशा कहती है हमें शांति दो, मुक्ति दो, यही दो चीजें मांगती है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए माता जी के निमित्त शांति का दान देंगे, बहुत अच्छे वाइब्रेशन देंगे और उनको प्यार से विदाई देंगे। वहां जहां जाए वहां उनका जीवन बहुत सुखमय बन जाए। तो अभी सभी शांति से बैठेंगे और जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे माता जी को हम श्रद्धांजलि देंगे। वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, शांति का वाइब्रेशन दें, प्यार का वाइब्रेशन दें, दुख का नहीं, शोक का नहीं, क्योंकि उनका जो आने वाला जीवन है वो भी बहुत अच्छा है। तो सभी शांति से बैठेंगे और माता जी को सामने इमर्ज करेंगे।
और कहेंगे कि आपके साथ हमने बहुत साल जीवन यात्रा चली, हमारे साथ आपने बहुत अच्छा पाठ बजाया, हमको बहुत कुछ सिखाया। अब हम चाहते हैं कि आपका अगला जीवन बहुत शांतिमय, कंचन काया मिले, प्यार करने वाला परिवार मिले, खुशियों से भरपूर, आनंद से भरपूर जीवन मिले। आपने हमारे साथ बहुत अच्छा पाठ बजाया। अगर कभी थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ भी है तो हम बहुत भावना से, प्यार से क्षमा मांगते हैं और आगे का जीवन आपका बहुत सरल, प्रेममय, आनंदमय और खुशियों से भरपूर और सदा शांति का माहौल बना रहे, ऐसा हम दिल से श्रद्धा सुमन, भावनाएं आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। वास्तव में मृत्यु the end नहीं है। मृत्यु को अलग विराम कहा गया है। पूर्ण विराम में थोड़ी देर के लिए रेस्ट, फिर से वो जीवन में आएंगे, फिर से एक नया संबंध बनेगा, एक नया रोल मिलेगा, नया वस्त्र मिलेगा, नया परिवार मिलेगा, फिर से हमारा ये जर्नी शुरू हो जाती है। लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो तंदुरुस्त व्यक्ति भी भयभीत हो जाता है। मृत्यु शब्द सुनते परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, उस आत्मा को हम वापस बुला नहीं सकते। अगर वो आत्मा आना भी चाहे तो भी वो नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ जो रोल था, यहाँ जो पाठ था, वो समाप्त हो गया। लेकिन हम माता जी को दिल से प्यार करते हैं, उनको सदा जिंदा रखना चाहते हैं, तो हम उनकी गई हुई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करें, उनकी अच्छी बातों को जीवन में अपनाएं, उनके गुणों को हम अपने में धारण करके हम भी उन जैसे कर्म करने के लिए कोशिश करें, वैसे बनने का प्रयास करें। घर का माहौल जैसे माता जी चाहते थे हम ऐसे बना के रखें, वही सच्ची श्रद्धांजलि है। और माता जी हमेशा हमारी यादों में, हमारे कर्मों में, हमारे संस्कारों में, हमारे व्यवहार में जिंदा रहेंगे। ये हम कर सकते हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण होते हैं वो 3 प्रसंग आते हैं। सबसे पहला प्रसंग होता है जन्म का। जब हम सबका जन्म हुआ होगा, हमारे माँ बाप ने भी बहुत पहले से तैयारी करनी शुरू करते हैं, कम से कम 4-5 महीने से पहले से ही वो खुशी का माहौल होता है, हम तैयारी करते हैं उस बच्चे के लिए।
और फिर बड़े हो जाते हैं। फिर हमारा दूसरा प्रसंग आता है जब हमारी शादी हो जाती है या कोई सा बड़ा कार्य होता है। उसके लिए भी इंसान 2-3 साल पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देता है, चीजें जमा करने शुरू कर देता है, बनाना शुरू कर देता है, सारी तैयारी करना शुरू करता है। लेकिन जो तीसरा प्रसंग है वो है मृत्यु। उसके लिए हम क्या तैयारी करें? आज हम अपने आप को चेक करें, देखें अपनी जीवन यात्रा को कि आज तक मैंने जमा पूंजी क्या किया है। मेरा अकाउंट में कौन सा खाता है? दुआओं का खाता है, सुख का खाता है कि मैंने सबको सुख दिया, दुआएं दी। ये नहीं है कि मैंने कितना काम किया, मैंने कितना नाम कमाया, क्योंकि सब कुछ जाने वाला नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ये हमारा शरीर है, ये शरीर ही हमारे साथ नहीं जाएगा तो और क्या जाएगा। लेकिन हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे संस्कार लोगों को सुख दिया होगा, किसी की मदद की होगी, सेवा की होगी, कि हमारे साथ जाए। तो ये तैयारी हम कितना कर रहे हैं। आज हम किसी पड़ोस के घर में जाना भी होता है, कोई कहता है चलो पड़ोसी के घर में, तो हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा तैयार होते हैं, फिर आते हैं। लेकिन जो मृत्यु निश्चित है कि हमारे को मृत्यु आनी ही आनी है, लेकिन उसकी तैयारी के बारे में हम सोचते नहीं। फिर कहते ये तो अचानक हो गया, ये कैसे हो गया? जबकि परमात्मा कहते कि बच्चे मैंने पहले ही तुमको सारी वार्निंग दी हुई है। कहते हैं कि जब हमारे बाल थोड़े से सफेद होने लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि परमात्मा का ये पहला लेटर है, बुलावा आने वाला है। थोड़ा सा दांत ऊपर नीचे हो जाए, गिर जाए तो फिर समझना चाहिए ये दूसरा लेटर है। अगर आंखों से दिखाई देना कम हो जाए तो समझना चाहिए ये तीसरा लेटर। कहने का भाव कि परमात्मा तो हमें समय समय पर इशारा देते रहते हैं, वार्निंग करते रहते हैं, लेकिन हम उस बात को कितना दिल से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं। कहीं भी जाना होता है यात्रा पर तो हम पहले से ही बैगेज तैयार करते हैं, ये भी सामान चाहिए, वो भी सामान चाहिए, नहीं तो यात्रा में मुश्किल हो जाए। तो हमारा भी ये यात्रा यहाँ से खत्म होके आगे जाने वाला है। सबके पास ये यात्रा फिर से आने वाली है, आना ही है, ये निश्चित है कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु है। लेकिन वो तैयारी हम कितना कर रहे हैं, आज हम स्वयं से पूछें। जब हम परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में कुछ बातें जानते हैं तो हमारी तैयारी बहुत अच्छा हो सकता है। हम मृत्यु के डेट को नहीं चेंज कर सकते हैं, टाल नहीं सकते हैं, लेकिन मृत्यु को सुखदायी बना सकते हैं, सुधार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कुछ बातें हमेशा याद रखो कि हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, और जाना है तो तैयारी करके जाना है, कुछ लेके जाना है। परमात्मा को याद करके उसकी याद में हमने जाना है ताकि हमारे अंत मते सुगति। तभी कहते हैं कि किसी की मृत्यु तो श्रद्धांजलि बन जाता है और किसी के मात्र समाचार। तो हमारी मृत्यु कैसी हो, हमारे जाने के बाद लोग हमारे बारे में क्या बातें करें, वो हम अभी से ही हम ध्यान देंगे तो अवश्य ही हम अपनी मृत्यु को सुधार सकते हैं, सुख में मृत्यु बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देती हूँ। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। अंतर है भजन करने वाले में और बिना भजन करने वाले। राम जी की भी राशि एक है और रावण की भी राशि एक है। केवल कर्मों
याद किया जाता है। यदि धन की बात करो तो रावण ज्यादा धनवान था। यदि परिवार की बात करो तो परिवार किसका ज्यादा था? रावण का। यदि वेदों की बात करो तो 4 वेदों का ज्ञाता कौन था? रावण था। और यदि रहने सहने की बात करो तो सबसे ज्यादा संपन्न कौन था? रावण था। लेकिन एक कर्म ऐसा कर बैठा जिससे सारा किया धरा समाप्त। उसी तरह गरुड़ पुराण में लिखा है, जीवन भर कपड़े सिलाने जाते, क्या कहते? बोले जेब चाहिए थी, ऊपर भी थल्ले भी, कुर्ते च भी ला दी, पजामे च भी ला दी, घर बनाने अलमारी भी, किचन च भी बॉक्स बना दी, कपबोर्ड। सुबह के कपड़े वॉकिंग के अलग, नहाने के अलग, मंदिर जाने के अलग, ऑफिस जाने के अलग, ऑफिस से आने के अलग, खाना खाने के अलग, खाना बनाने के अलग, सोने के अलग। इतना कुछ है, फिर भी मनुष्य क्या कहता है? कुछ भी नहीं, मैनू परमात्मा ने दिता की है जो मैं भजन करा, मैनू गुरु जी ने दिता की है मैं भजन करा। जब कभी मन में आ जाए ना कि मुझे कुछ मिला ही नहीं, आप आज आश्रम में एक बार जाके आ जाए, एक बार कुछ आश्रम जाके आ जाइए, पता लग जो की मिले। मनुष्य जीवन भर कहता है संपत्ति एकत्रित करता है, बच्चों के लिए करके जा रहा हूं, लेकिन संस्कार और गुण देकर जाइए, बच्चों को जाने चाहिए। और ये काम माता जी ने किया, अपनी बहुओं को भी, बहुएं भी पूरी संपन्न, बच्चे भी संपन्न, ये गुण देकर जाने चाहिए। संपत्ति तो आज है तो कल नहीं है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि संतान अच्छी है तो उसे संपत्ति देकर जाने की जरूरत नहीं है, वे अपने आप कमा लेगी, जोड़ लेगी। और यदि संतान को आपने गुण नहीं दिए, संस्कार नहीं दिए, जितनी मर्जी संपत्ति जोड़कर दे जाइए, सब खत्म। मेरे ठाकुर जी तो सबकी व्यवस्था करते हैं। जेड़ा 100 फुट थल्ले है ना जमीन दे, वहां तक कौन भोजन पहुंचाता है? धरती को खोदते ना, नींव पड़ते 4-5 फुट कीड़ी निकलती है, उस कीड़ी तक भोजन कौन पहुंचाता है? वह परम पिता परमात्मा। आकाश में जो 100 फुट ऊंचा उड़ रहा है, वहां तक भोजन कौन पहुंचाता है? उसे उड़ना किसने सिखाया? उसे संभलना किसने सिखाया? साडियां तुहाडियां ते 5-5 6-6 जेबां, बैग भी है, पर्स भी है। जिहदे कोल एक भी जेब नहीं, एक भी जेब नहीं, जिहदे को रसोई भी नहीं, जिहदे को स्टोर भी नहीं, ओदी व्यवस्था किन्ने कीती है? उसकी देखरेख कौन करता है? बोलो श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे, क्योंकि परिवार ना बहुत अच्छा है, मेहता परिवार बहुत अच्छा है।
बहुत सामाजिक, बहुत धार्मिक है। और किरण मेहता जी भी ब्रह्म कुमारी आश्रम के साथ बहुत सेवा करती है, बहुत सेवादार है परिवार। तो बहुत सारे गणमान्य सामाजिक धार्मिक बहुत सारे यहाँ पर विद्वान बैठे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन परिवार ने मेरी सेवा लगाई। बोले पंडित जी आपको 10 मिनट माता जी के निमित्त श्रद्धांजलि देनी है। तो अब मैं निवेदन करूंगा सिंधुरा जी से, निवेदन करूंगा कि माता जी के निमित्त श्रद्धांजलि अर्पित करें। ब्रह्मा कुमारी से संधीरा बहन जी से निवेदन करूंगा कि परिवार पर ये जो दुख आया है, तो परिवार को श्रद्धांजलि रूपी कुछ ऐसी ज्ञान रूपी कथा शब्दों से कर्तार्थ करें जिससे ये कष्ट कम हो और इस कष्ट को सहन करने की शक्ति परमात्मा ने प्रदान करे। निवेदन करूंगा ब्रह्म कुमारी आश्रम से हमारी बहन जी आई है, परिवार को कल्याण रूपी शब्दों से कर्तार्थ करें। ओम शांति, ओम शांति। हम सबके अति प्यारे, अति मीठे चंद्रकांता माता जी इस साकार देह को, 5 तत्वों के शरीर को छोड़ करके इस साकार दुनिया से उन्होंने विदाई ली है। अभी हम जैसे भाई साहब से सुन रहे थे कि हमने चाहे अपने पहनने वाले कपड़ों में भी कितनी हम जेबें बना देते हैं और घरों में भी कितनी अलमारियां आदि बना देते हैं और बैंक में भी लॉकर रख लेते हैं, लेकिन हम सब इस बात को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं और समझते हैं और इस बात को मानते भी हैं कि हमारे साथ वो सब कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन ज़रूरत के अनुसार हम सबको उन चीज़ों का संग्रह तो करना ही होता है, लेकिन संग्रह हम इतना भी ज़्यादा ना करें स्थूल मटेरियलिस्टिक चीज़ों का कि जो हमारी बुद्धि उसमें ही अटक जाए, उसमें लटक जाए और उसमें ही भटक जाए। तो हमारे माताश्री जी की तो ये बहुत बड़ी विशेषता थी, क्योंकि हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिक्षा ही यही दी जाती है कि हमें जो हमारे साथ जाने वाली सच्ची कमाई है उसके लिए हमें मेहनत करनी है, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, उसके लिए हमें भगवान बाप को याद करना है। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कर्मों की गहन गति प्रैक्टिकल रूप में बताई जाती है। और माता जी तो इन्होंने तो अपने कर्मों के द्वारा, अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा खुद तो वो सच्ची कमाई का संग्रह किया ही है और अनेकों को प्रेरणा दी कि हमारे साथ जाने वाली सच्ची कमाई क्या है। जैसे कई बार हमें ऐसे बहुत सारे लोगों से सुनने को भी मिलता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में अगर जाएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे माताश्री जी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहे हैं हम सबके सामने और आप सबके सामने भी। और आप सबने देखा है परिवार को कैसे बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाया और कारोबार बहुत अच्छे ढंग से चलाया और परिवार को संपन्न भी किया और अपने जीवन को गुण और शक्तियों से संपन्न किया, भरपूर किया और शांति से, खुशी से, प्यार से इस देह और देह की दुनिया से विदाई ली। तो हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि माताश्री जी के प्रति यही रहेगी कि उन्होंने प्रैक्टिकल जैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, जो इन्होंने हम सबको प्रेरणाएं दी, जो शिक्षाएं दी और जिस रीति से ये हमारे लिए आदर्श बनकर अपने घर गृहस्थ परिवार संबंधों में रहते हुए चलते रहे और उनकी ये सारी शिक्षाएं और प्रेरणाएं हम अपने जीवन में अगर
धारण करते हुए चलते रहेंगे और इनके जैसे अपने जीवन को भी आदर्श मूर्त बना करके गुण और शक्तियों से खुद को संपन्न करके सर्वशक्तिवान की प्रिय आत्मा बन करके इस संसार से विदाई लेंगे और शांति से खुशी से इस दुनिया से विदाई लेंगे, तो यही हम सबकी माता जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, शांति। अंत में थोड़ा 2 मिनट के लिए हम सब ओम की ध्वनि के द्वारा, वैसे तो ये आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर ही थी, जिसने शांति के सागर को अपने दिल में समाया हुआ था और बसाया हुआ था, उस आत्मा को हम शांति का दान क्या ही दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ओम की ध्वनि के द्वारा हम शांति के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाएंगे और विश्व की आत्माओं को भी शांति का दान देंगे और उस आत्मा को भी शांति का दान देंगे। तो हम संगठन में ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार। अपने आप को भृगु जी के बीच में मस्तक पर पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप में रियलाइज करेंगे और इसी समृद्धि में रहते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे और महसूस करेंगे मेरे मस्तक से शांति के शक्तिशाली प्रकंपन मेरे चारों तरफ फैलते जा रहे हैं। सभी तैयार हो जाएं। ओ